Okay. So I'm going to start the chapter, or you can say we are going to continue the chapter. So in yesterday's class, we studied about the different sources of the interior of the earth, like the direct sources and indirect sources. ठीक है? तो direct sources में हमने क्या पढ़ा था about mining and volcanic eruptions, and then indirect sources में हमने पढ़ा था about the inferences which we have drawn from the mining activities. जो भी mining activities होती हैं, उनसे हमने कुछ conclusion निकाला था, like as we go down inside the earth, temperature, pressure and density of the material increases. Then second was the gravitational anomaly or the gravitational changes. It means हमारी जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे आपको हर जगह जो है क्रस्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसी फील नहीं होगी, कहीं ज्यादा है कहीं कम है. लाइक पोलर एरियाज में हाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे फील किया गया है एंड इक्वेटोरियल एरियाज में कम किया गया. इसका मतलब क्या है कि इससे भी प्रूफ होता है कि जो हमारे अर्थ में जो डिफरेंट मटेरियल्स है उनकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हाई डेंसिटी मींस हाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड लो डेंसिटी मींस लो ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये भी है. एंड देन आपको बताया था कि हमारा जो इक्वेटोरियल एरिया इट इज अवे फ्रॉम द पोल. इससे हमें अंदाजा मिला कि हमारा रेडियस कितना बड़ा होगा और हमारा अर्थ जो है वो जो है सेंटर में ज्यादा बल्ज आउट है एंड पोलर एरियाज जो है वो इस फॉर्म में, मतलब दबे हुए फॉर्म में, दे आर नियर द पोल. That's why gravitational force is felt more in the polar areas as compared to equatorial areas. And then last was seismic waves, that is earthquake. And earthquake क्या होता है वो मैंने बताया था. Earthquake means whenever there is disturbance in the plates or when plates collide with each other, then seismic waves are originated from a point deep inside the earth, and that point is known as focus. And the place which is just perpendicular to the focus, which experiences the seismic waves for the first time, is known as epicenter. All right. And these seismic waves are very helpful in for scientists to know about the interior of the earth. ये जो seismic waves हैं, after studying these waves, scientists have drawn a number of conclusion and number of facts they have given about the interior of the earth. Because all these seismic waves, ये मतलब seismic waves different types होती हैं, like primary waves, secondary waves, तो काफी तरह होती है और इनका नेचर अलग होता है. The way they travel, the way they move from the different bodies like solid, liquid and gas. तो इसके बेसिस पे जो है हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ पता ला पाए हैं. फॉर एग्जांपल, अब आप नीचे आइए. एपिसेंटर, हाइपोसेंटर को ही फोकस कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है. नाउ नेक्स्ट इज अर्थक्वेक वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर. अर्थक्वेक कहाँ आता है? बहुत नीचे नहीं आता है, ऑन द क्रस्टल एरियाज में आता है, और उसका फोकस कहाँ होता है? इनसाइड द अर्थ. इट इज सफिशिएंट. देन an instrument called seismograph records the waves reaching the surface. कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है? seismograph. And the scale at which it is measured is known as Richter scale. Note that the curve shows 3 distinct sections, each representing different types of wave pattern. Earthquake waves are basically of 2 types. Underline करिए. Earthquake waves are of 2 types. One is your body waves and the other is surface waves. ठीक है. बॉडी वेव्स एंड सरफेस जो वेव्स होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है? लाइक ये हमारा अर्थ है, ये हमारा जो क्रस्ट है, ये फोकस है. ठीक है. अब फोकस से जब हमारी सिस्मिक वेव्स को ओरिजिन होता है, तो ये जो वेव्स मूव करती हैं, दीज आर नोन एज बॉडी वेव्स. जो इंटरनली मूव करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स. ठीक है. और आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारा ये क्रस्ट है तो ये सब क्या है? ये सब पत्थर है, रॉक्स है, यहाँ पे बोल्डर्स है, मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्रस्ट है ना. क्रस्ट अभी हमारा कम से कम 35 और उससे भी गहरा हमारा क्रस्ट होता है. तो ये हमारा जो है रॉक्स हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है हमारे जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करते हैं. ठीक है. जो वेव्स का प्रोपागेशन होता है, इट इज थ्रू द डिफरेंट रॉक्स. और जैसे ही ये आपके वेव्स हमारे क्रस्ट तक जैसे पहुंचते हैं, जैसे हमारे क्रस्ट को टच करते हैं, टॉप मोस्ट ये जो हमारा लेयर है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म ऑफ वेव में, जिसको हम कहते हैं बॉडी वेव्स. तब ये ऐसे चलती है, ऐसे स्प्रेड होती है. ये तो वर्टिकल हो गया, परपेंडिकुलर मूव करके डिफरेंट डायरेक्शंस में, और जैसे ही हमारे क्रस्ट को उन्होंने टच किया, दे जनरेट अनदर सेट ऑफ वेव्स एंड दोस वेव्स आर नोन एज सरफेस वेव्स. क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स. So these are body waves which originate and they travel inside the earth only,
एंड व्हेन दीज वेव्स, बॉडी वेव्स, यही आपका सरफेस वेव्स का भी ओरिजिन होता है, जिसको हम धरातलीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो कब होती हैं कि जैसे मान लो मैंने इस टेबल को धक्का दिया, ये मेरा फोर्स है, ये मेरे हाथ का फोर्स है, और जैसे मैं टेबल को धक्का दिया, टेबल उधर जाके गिर रहा है, तो टेबल में भी अपना फोर्स जनरेट हुआ, टेबल की जो बॉडी है उसमें भी फोर्स जनरेट हुआ, तो वो दूसरी टाइप का जो है फोर्स होगा, वेव होगा। तो उसी तरह से इसको हम बॉडी वेव कहते हैं। एंड द मोमेंट बॉडी वेव्स टचेस द क्रस्ट, इट जनरेट्स अनदर सेट ऑफ वेव्स, उससे दूसरी तरंग स्टार्ट हो जाती है और वो मूव करती है हॉरिजॉन्टली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जहां तक जितना इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जितना हायर इंटेंसिटी होगा उतना ही वेव ज्यादा लंबा एरिया कवर करेगी। अगर लो जोन पे होगा तो वो थोड़ा सा वाइब्रेशन होगी और कमी एरिया को जो है नुकसान पहुंचाएगी। जो मैंने कल आपको रिक्टर स्केल पे बता दिया था कि अबव 7 जो है डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, और अगर 9 है तो ज्यादा एरिया को कवर करेगा। तो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक। सो ये हैं आपके वेव्स, इसको हमने कहा बॉडी वेव्स, इसको हमने कहा सरफेस वेव्स, ठीक है। एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स आर सरफेस वेव्स, जो हमारी धरातली तरंग होती है, क्योंकि बॉडी वेव्स दे आर ट्रेवलिंग इनसाइड द अर्थ ओनली, बट सरफेस वेव्स दे ट्रेवल ऑन द क्रस्टल सरफेस। एंड जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, जो भी आपकी शेकिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, जो भी बिल्डिंग्स गिरती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस वेव्स। सो जो दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। Now body waves are again पढ़ लेते हैं। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth। तो जो ये वेव्स निकलती है फोकस से, हमारे अर्थ की जो भी बॉडी है, मतलब रॉक्स है, उनके थ्रू ट्रेवल करती है, हेंस द नेम बॉडी वेव्स, इसलिए इसको बॉडी वेव्स कहा जाता है। The body waves interact with the surface rock and generate new set of waves called surface waves. These waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through materials with different densities. Now this is very important point. The velocity, underline कीजिए. What is velocity? What is velocity? In simple terms, क्या कहते हैं? Velocity means speed, है ना? The velocity of the waves changes. जो भी आप जो हमारी बॉडी वेव्स है, हम बॉडी वेव्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि उसी से हमें इंटीरियर का अर्थ का पता चलता है, क्योंकि सरफेस वेव तो सरफेस पे है। तो बॉडी वेव्स जो होती हैं, दे ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट स्पीड में चलती हैं जब वो डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स को क्रॉस करती है। मान लो हाई डेंसिटी मटेरियल है, तो वहां पे उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखते हैं, शायद बढ़ती है, देखते हैं। डेंसर द मटेरियल हायर इज द वेलोसिटी। तो ये जो आपकी वेव्स होती हैं बॉडी वेव्स, मान लो बॉडी वेव्स हर चारों डायरेक्शन में फैल गई, और जहां भी मान लो यहाँ पे पत्थर है, पत्थरों का पूरा जो है वो है, और वो काफी हेवी डेंसिटी का है, मतलब काफी उसमें मतलब जो भी मटेरियल है वो काफी घना है, मतलब काफी हाई डेंसिटी का, भारी है। तो सरफेस ये जो वेव्स होंगी इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। और जितना हल्का मटेरियल होता है उतनी उनकी स्पीड कम रहती है। So higher the material or the density, higher the velocity of the waves becomes, and lower the density. Density मतलब आप समझ जाना, density word बार बार यूज होता है। Density means घनत्व। Suppose like right now only few people, 9 to 10 people are sitting in the class. It means the density in the class is very less. According to the sitting capacity of the class, the density of the people or the children are very less. इसमें कम से कम 40 बच्चे बैठ सकते हैं, आप 35-30 जो भी है। लेकिन अगर इसी क्लास में 50 बच्चों को डाल दिया जाए, 60 बच्चों को डाल दिया जाए, तो इस क्लास की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी विल इंक्रीज, घना हो जाएगा बहुत। सो बेसिकली डेंसिटी मींस घनत्व और भारी, हैवीनेस। सो जितना मटेरियल हैवी होगा हमारे अर्थ के अंदर का, उतने ही ये वेव जो होती है फास्ट मूव करेंगे, जैसे कोर, जैसे ये तरंगे। अब हमें कैसे पता चला कि हमारा इंटीरियर जो है कोर वो काफी डेंस है? बिकॉज साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया कि जो भी बॉडी वेव से जैसे ये इस एरिया में जा रही है, उन्हें नहीं पता कोर है क्या ये, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि जैसे ही तरंगे इस एरिया को क्रॉस कर रही है, उनकी स्पीड सडनली काफी इंक्रीज हो जा रही है, और फिर जैसे उन्होंने क्रॉस किया इसकी स्पीड अगेन कम हो गई। इट मीन्स कि यहाँ ये जो पार्ट है हमारे अर्थ का वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, ये समझ में आ गया आपको सरफेस वेव एंड बॉडी वेव। बॉडी वेव्स ट्रेवल inside the earth only. Then body waves are of two types. One is primary wave and another is secondary wave. Primary, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात करेंगे। सरफेस वेव खत्म हो गया है, बिकॉज सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव होते हैं एंड इट इज ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम यहाँ की बात करें तो
जो हमारे बॉडी वेव्स है वो प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। अब देखते हैं हम, अरे इससे पहले एक और सुन लो, ये द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। ये सब चीजें हैं जिनसे साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं, है ना। तो जहां भी वेव्स की स्पीड फास्ट हुई वहां पे मटेरियल क्या हो गया, इसका मतलब डेंस है। जहां भी स्पीड कम हुई इसका मतलब वहां पे मटेरियल डेंस नहीं है, हल्का, ठीक है, लाइट वेट है। देन their direction also changes as they reflect or redirect when coming across material with different densities। और कुछ वेव्स ऐसी हैं जो या तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट मतलब रिबाउंड होना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन मान लो एक लाइट एनर्जी टकराई तो वो बिखर जाती है, फैल जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हाँ लग गई वापस रिबाउंड हो गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी एंड एस वेव्स। P waves move faster and are the first to arrive at the surface। तो उसमें से जो P waves है उसको हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं, और ये जो है काफी तेज स्पीड में मूव करता है और सबसे पहले सरफेस पर यही आता है। These waves are also called as primary waves। The P waves are similar to sound waves। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं उस साउंड वेव्स की, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, साउंड है, साउंड वेव, ठीक है, तो साउंड वेव की तरह होती हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। तो आप ये समझ लीजिए प्राइमरी वेव की खासियत क्या है, हाँ, कि इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हर मीडियम से ये ट्रेवल कर सकता है, और मैक्सिमम अर्थ के इंटीरियर में प्राइमरी वेव ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एस वेव्स arrive at the surface with some time lag and hence these are called secondary waves। तो जो तरंगे सबसे पहले निकलती हैं और सरफेस तक पहुंचती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, एंड जो तरंगे कुछ टाइम बाद जो है निकलती हैं और लेट में पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और फैक्ट अबाउट एस वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ठीक है। अब हमारे साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं उनकी देखो प्राइमरी वेव हर मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव है उसकी खासियत है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, उससे क्या अंदाजा लगेगा कि अगर हम अर्थ का पूरा एनालिसिस करें सिस्मोग्राफ के थ्रू, है ना, क्योंकि हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग आ जाती है कि कहाँ पे जो है मतलब तरंग कौन सी है, कौन सी नहीं पाई जा रही है। तो वो एरिया जहाँ पे एस वेव नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो हिस्सा किस फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा या तो गैस में होगा। समझ में आया आपको? क्योंकि सेकेंडरी वेव, सुन लो, सेकेंडरी वेव्स दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ठीक है। अब से मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकते हो, तो अगर आप यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये हिस्सा सॉलिड में नहीं है। तो अर्थ में जब हमने स्टडी किया, जैसे आप उसके नीचे वाले पेज पर आइए, आपको दो वो दिख रहे हैं ग्लोब टाइप में, पी शेडो जोन एंड एस शेडो जोन दिख रहा है आपको। पेज 24 पर देखिए, पेज 24। हाँ, तो इस पर अगर आप देखेंगे तो पी शेडो जोन जो है ये वो पूरा ग्लोब है, अर्थ का पूरा वो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ तक आपकी प्राइमरी वेव्स पहुंचती हैं और कहाँ पे प्राइमरी वेव्स पहुंचती नहीं है। तो आपको ग्रे शेडेड एरिया नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे शेडो जोन, छाया, है ना। शेडो जोन मतलब कि इस एरिया में 105 डिग्री और 145 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये जो एरिया दोनों तरफ है, यहाँ पे आपको प्राइमरी वेव रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे शेडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव्स। शेडो जोन बेसिकली मतलब जहां से वो वेव गायब है, नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो जहां पे पर्टिकुलर वेव नहीं पाई जाती वो उस वेव के लिए क्या कहा जाता है, शेडो जोन। अब मान लो छाया है यहाँ पे, वहां पे शेड है, वो शेड दिख रहा है आपको वहां पे वॉल के पास, इसका मतलब वो शेडो क्यों है, क्योंकि वहां पे इंसुलेशन नहीं पहुंच रहा है, वहां पे सन की जो तरंगे हैं, जो रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पेड़ एक ओपेक उसका काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेडो। उसी तरह से जहां पर भी एक पर्टिकुलर वेव नहीं पहुंच पा रही है तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, शेडो जोन ऑफ दैट वेव। तो जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें आप देखिए 105 से 145 के बीच में दोनों तरफ आपको पी शेडो जोन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाई है इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है। बाकी देखिए मैक्सिमम एरिया में, कोर में भी देखिए आपको प्राइमरी वेव्स दिख रही होंगी, और ऊपर भी प्राइमरी वेव्स हैं और नीचे भी आपको प्राइमरी वेव्स दिख रही हैं।
इसका मतलब यहाँ पे कुछ है जहाँ पे प्राइमरी वेव्स डायरेक्ट नहीं पाई गई हैं। देन नीचे का डायग्राम देखिए, ये है एस वेव शेडो जोन, दिख रहा है आपको एस वेव शेडो जोन। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है प्राइमरी वेव्स तो आपको दिख रही है 105 के आसपास, लेकिन 105 से नीचे पूरा का पूरा एरिया ग्रे शेडेड है। इसका मतलब यहाँ पे जो है सेकेंडरी वेव्स रिकॉर्ड नहीं की गई, ठीक है। तो या तो इंटेंसिटी कम होगी, या तो जो है यहाँ ये एरिया या तो लिक्विड में होगा, तभी ये यहाँ पे प्राइमरी वेव जो सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाई, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया इनको इंस्ट्रूमेंट पर, सिस्मोग्राफ पर। तो ये इसका क्या हो गया, आपका एस वेव का शेडो जोन हो गया, क्योंकि तरंगें थोड़ी वीक भी होती हैं तो हर जगह नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। और सॉलिड अगर लिक्विड आ गया, गैस आ गया, तब तो और नहीं पहुंच और ट्रेवल नहीं कर पाएंगे उसमें, तो इसको हम कहते हैं शेडो जोन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और आप देखिए दोनों ही अगर आप डायग्राम्स देखोगे तो उसमें एस वेव का शेडो जोन ज्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि एस वेव कम पाया जाता है और प्राइमरी वेव्स मैक्सिमम पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में स्प्रेड आउट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि हम लोग वेव्स के थ्रू कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि जो हमारी दो टाइप की वेव्स हैं, बॉडी एंड सरफेस। सरफेस से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरफेस डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स दे ट्रेवल इनसाइड द अर्थ and they are of two types, one is primary and one other is secondary waves, ठीक है। अभी जो प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स हैं उनका नेचर अलग होता है। जैसे प्राइमरी वेव्स है, इट इज लाइक अ साउंड वेव एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। देन आपका जो सेकेंडरी वेव्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेकिन वो कम ही पाए जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी कम है, बट देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल। तो जहां भी हमें साइंटिस्ट ये इन्फ्रेंस निकालते हैं, लाइक वेयर एवर दे आर एब्सेंट इन द अर्थ, दैट पार्ट इज इन द लिक्विड, आइदर इन लिक्विड फॉर्म और गैसेस। तो गैसेस तो बहुत ही कम ही होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो मतलब बेसिकली हम जिस जगह एक वेव पाई गई या नहीं पाई गई, उस हिसाब से हम सन का जो हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। और मैंने डेंसिटी का भी बता दिया कि जैसी डेंसिटी कम या ज्यादा होती है, इनकी स्पीड भी बढ़ती है। तो जब हम सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं, आप ये देखिए सिस्मोग्राफ का एग्जांपल आपको दिख रहा है, जो ये तरंग जैसा वेव्स टाइप का बना हुआ है, पेज नंबर 23 पर देखिए, दिख रहा है पी वेव्स धीरे धीरे, फिर एस वेव एंड देन सरफेस वेव, दिख रहा है आपको। ये सिस्मोग्राफ का रिकॉर्डिंग है। तो सिस्मोग्राफ सब रिकॉर्ड करता है, तो जहां भी वेव की इंटेंसिटी कम हुई, स्पीड कम हुई, इसका मतलब कि वो एरिया वहां पे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज लेस। और जहां भी वेव की जो स्पीड बढ़ी, जैसे जैसे बढ़ा उसका वो, ठीक है ना, साइज, इसका मतलब वहां पे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज हाई। तो हम डेंसिटी पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे सॉलिड में है, कहाँ पे लिक्विड में है, विद द हेल्प ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। शेडो जोन मैंने आपको बता दिया, शेडो जोन क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ where a particular wave is not found or not recorded on a seismograph instrument, that part is known as the shadow zone of that particular wave. तो पी वेव का अलग शेडो जोन है, एस वेव का अलग शेडो जोन है, बट मेजोरिटी कौन सा वेव ज्यादा वाइड स्प्रेड है, पी वेव्स, प्राइमरी वेव ज्यादा इंटीरियर अर्थ को कवर कर रहा है, जबकि शेडो जोन सबसे अधिक किसका है, एस वेव का। भाई मैप आप ये एमसीक्यू में आ सकता है किसी भी चीज में, तो आप शेडो जोन सबसे अधिक किसका है, सेकेंडरी वेव का। मतलब सेकेंडरी वेव पूरे अर्थ के इंटीरियर में मैक्सिमम हिस्सों में नहीं पाई जाती, बहुत ही लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, 105 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। द फर्स्ट इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। कम से कम एटलीस्ट यू शुड नो द नेम्स फर्स्ट, डिफाइन तो आप बाद में करोगे, पहले आपको नाम रटे होने चाहिए। वन इज टेक्टोनिक, other is volcanic, then और कौन सा है, third one is collapse, fourth one is explosion and last one is your reservoir induced earthquakes। तो हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है ये। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, these are generated due to sliding of rocks along a fault plane. So these are the most common types of earthquake, और जो maximum high Richter scale पे जो earthquakes आते हैं, they are the tectonic earthquakes, ठीक है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, जब कहीं दरार होती है, उसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। जब भी पृथ्वी पे बहुत लंबा सा क्रैक होता है उसको हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं, या वो एरिया जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में टकरा, मतलब उनका
जो भी है आपस में आके कन्वर्ज होती हैं, टकराती हैं, तो उसको फॉल्ट लाइन कहा जाता है। और जब भी दोनों आपस में टकराती हैं प्लेट्स, तो उससे जो अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। हैव यू हर्ड अबाउट टेक्टोनिक वर्ड अर्लियर? है ना, ये जो भी हमारा क्रस्ट है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स, इसे हम प्लेट्स कहते हैं। कॉन्टिनेंट तो हम कहते हैं बट दे आर एक्चुअली प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, व्हेन एवर टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, और कुछ भी इनमें इंटरेक्शन होता है, कभी कभी दूर दूर जाने की वजह से भी होता है, ऊपर नीचे होने की वजह से भी होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ गई, तो जब भी ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होता है इन द टेक्टोनिक प्लेट्स, देन टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैपेंस, एंड दीज आर, जो भी आपके नेचुरल अर्थक्वेक्स हैं, दे आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन ओनली, व्हिच हैपेंस ऑन अ लार्ज स्केल and they're most destructive. Next is your volcanic earthquake. Volcanic earthquake मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी पृथ्वी से धमाका होता है ना, अर्थ के वोल्केनो क्या है, इनसाइड से मैग्मा ऊपर आया बहुत तेजी से, और उससे जहां भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो भी हाई मैग्नीट्यूड के, है ना। वैसे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जब हाई मैग्नीट्यूड में होता है, ब्लास्ट के साथ होता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई यहाँ पे आप धमाका करोगे तो आसपास के एरिया में वाइब्रेशन होगा, तो उस तरह के अर्थक्वेक को हम कहते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। इनफैक्ट आप देखना, जब भी हम कोई पहाड़ी एरिया या कहीं भी हम जब ये रोड्स बनाने की कोशिश करते हैं, सड़क बनाते हैं, या फिर हम कहीं माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, तो हम डायनामाइट यूज करके उसको, उस एरिया को करने की ब्लास्ट करते हैं ना, उसमें से पत्थरों को हटाने की, तो देखना आसपास के एरियाज में वाइब्रेशन फील होते हैं। तो जब ब्लास्ट से वाइब्रेशंस होते हैं, सोचो जब वोल्केनिक इरप्शन होता होगा हाई स्पीड का, तो उसके आसपास के एरिया में हल्के ट्रिमॉर्स फील होते हैं, एंड दोस ट्रिमॉर्स आर नोन एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो ये इतना डेंजरस तो नहीं होता है, और ये वही उस तरह के अर्थक्वेक वहीं आते हैं जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक्टिव वॉल आप समझते हो, वोल्केनोज तीन तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक डोरमेंट होता है, और एक एक्सटेंट होता है। एक्टिव वो होता है जो कि हाँ कभी फटता भी और फट भी चुका है, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में, मतलब उसका इरप्शन होता रहता है, द राइट वर्ड इज इरप्शन, तो उसमें इरप्शन होता रहता है, तो उसको हम एक्टिव कहते हैं। डोरमेंट वो होता है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में हो चुका है, मतलब मान लो 10 साल हो गए, 50 साल, 100 साल भी हो गए, 200 साल भी हो गए, और उसके चांसेस है कि वो आगे भी इरप्ट हो सकता है, उसको हम डोरमेंट कहते हैं, हाँ डोरमेंट कहते हैं, कि मतलब वो अभी सो रहा है, कभी भी इरप्ट हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट होता है आपका एक्सटेंट, जो बहुत पहले कभी हुआ होगा, उसकी वजह से वहां पे एक कोन टाइप का डेवलप हो गया, क्योंकि जहां भी वोल्केनिक इरप्शन होता है वहां पे थोड़ा सा पहाड़ टाइप का बन जाता है ना, तो कोन टाइप का बन गया, लेकिन अभी तक उसमें बहुत साल हो गए, हजारों साल है, जब भी ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक हमारे उसमें धमाका नहीं हुआ है, तो उसको हम एक्सटेंड कहते हैं कि वो खत्म हो चुका है, और वहां पे कहीं भी अंदर से उसका सोर्स नहीं है मैग्मा आने का, तो वो बिल्कुल उसको हम एक्सटेंड कहते हैं, खत्म हो चुका है। तो ये वोल्केनिक जहां भी एक्टिव वोल्केनोज के एरियाज होते हैं, आप बता सकते हैं एक्टिव वोल्केनोज के एरिया कौन सा है हमारे अर्थ में, मेन एरिया कौन सा है जहाँ पे हमेशा ये वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है? जापान है, आपने जापान का है? जापान और पूरे आसपास का हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। जहां भी जापान है, देन उसके बाद आप नीचे आइए, नीचे जो भी आपके ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न साइड है, वहां से होते हुए साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न साइड। अब मैं आपको जो मैप बता रही हूँ ना, 11th क्लास में आके आप मैप अच्छे से रट लो पहले तो, ठीक है ना, दिमाग में आपको बसा होना चाहिए कि अगर मैंने कैलिफोर्निया बोला, मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड बोला, तो आपको पता होना चाहिए तुरंत कि अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड है, कि आपको आपके दिमाग में अब वैसा मैप लेना चाहिए कि आपको दिखाया जाए। अब आपके दिमाग में मेंटल मैप होना चाहिए, मेंटल मैप समझते हो, दिमाग में मैप होना चाहिए आपके, कि मैंने जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो मुझे पता है अच्छा यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो ये जो एरियाज मैंने बताया मेरे को पता है दिमाग में कि यहाँ पर है, तो वैसे आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर बनी चाहिए कि अगर मैंने साउथ अमेरिका का है, अभी मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं कि साउथ अमेरिका कहाँ पर है, पता है आप लोगों को? क्या आपको अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता है? ये डिफरेंट इशू है, तो मैं एक दिन क्लास में सबसे पूछूंगी, एंड अगर आप नहीं बता पाए तो बहुत ही वैसी वाली बात है कि आपको 11th लेवल पे अपने कॉन्टिनेंट्स, इंडिया का स्टेट कौन सा कहाँ पे है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैं दिन यहाँ पे बुलवा के फिर करवाऊंगी, समझ लेना। तो ये आपके पास टाइम है, जिस दिन मेरे को याद आया तो फिर मैं आपसे करवाने लग जाऊंगी, इसीलिए मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो भी हमारी PT1 का सिलेबस है, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर्स अभी और बचे हुए हैं इसके बाद। तो उसके बाद मैं आपसे पूरा वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप, इंडिया में आपके सारे स्टेट्स पता होने चाहिए आपको, विद कैपिटल्स, आसपास कौन सी वाटर बॉडी है, पड़ोसी हमारे नेबर्स कौन से, वर्ल्ड में कौन से महाद्वीप कहाँ पर है, एंड मेजर कंट्रीज, ठीक है, जो आपको 12th में भी काम आएगा और हमेशा ही काम आएगा। देन थर्ड है आपका कोलैप्स अर्थक्वेक।
कोलैप्स अर्थक्वेक भी आपका लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है, जो कि माइनिंग एरियाज में आता है, जहाँ पे भी माइनिंग, अभी आपको पता है कि जब भी हम कहीं माइनिंग करते हैं तो हम उसमें ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट की वजह से जो हल्का फुल्का ट्रिमॉर्स उठते हैं उसको हम कहते हैं माइनिंग अर्थक्वेक या फिर कोलैप्स अर्थक्वेक, क्योंकि उससे कोलैप्स जाता है, मतलब जगह जगह पहाड़ गिर जाते हैं या कभी जमीन दब जाती है, तो उसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। देन है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक तब आता है जब कहीं केमिकल रिएक्शन हो जाता है या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। मतलब आपने एटॉमिक बम का टेस्ट किया आपने, है ना, एटॉमिक बम जिसे हमने पोखरण में किया था, तो पोखरण में जब हम इंडिया ने जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो जो वहाँ के आसपास के एरियाज थे, राजस्थान में ना पोखरण, सुना आपने? अब पता है 2003 में भारत ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, 2003 में किए थे, कब ऐसे आसपास किए थे, तो उस समय 1999 के आसपास किए थे, तो उस समय पोखरण में हुआ था, वहाँ पे, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान का एरिया जैसलमेर के पास, हाँ, तो उस वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड किया था, और फिर लेकिन किसी को पता नहीं था कि आप इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और जब किया है तो फिर लोगों को वाइब्रेशन वहाँ पे फील हुई है, क्योंकि भाई उतना तेज धमाका होता है वो, तो लोग ओशन में भी करते हैं, देन लैंड पर भी करते हैं एटम बम का जो टेस्ट होता है। तो जब भी, और या तो मान लो कभी कहीं बम फट गया, आपने हिरोशिमा नागासाकी में जब अमेरिका ने बम फोड़ा था, तभी पूरा एरिया कवर हो गया था उस धमाके के साथ। ये मत सोचो कि बम फोड़ा तो सिर्फ बम ऐसे नहीं, वो पूरा इतना बहुत तेज ट्रिमॉर उठता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका लैंड शेक हो जाता है, और क्योंकि अगर आपने अंडरग्राउंड बम डाल दिया न्यूक्लियर वेपन और फिर टेस्ट किया, तो वो अंदर से तो फटेगा ना, तो पूरा एरिया जो है आसपास का वो हिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और कुछ समय पहले अभी कौन सा देश है मुझे याद नहीं आ रहा, सीरिया के आसपास से कोई बहुत अच्छा, क्या था वो कंट्री का नाम, जो यहाँ पे सीरिया ना, सीरिया इजराइल, वहीं पे कोई कंट्री है, तभी 1 साल पहले ही वहां पे उन्होंने क्या किया था, अपना जो बंदरगाह था उसी के पास बहुत सारे केमिकल्स, पता नहीं कौन सा केमिकल था, उसको इकट्ठा कर करके रखा हुआ था वेयर हाउस में, और वो अचानक से पता कितनी क्विंटल, कितनी 1000 क्विंटल वो केमिकल था, और उनको अंदाजा नहीं लगा, और वो उसमें क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने की वजह से, मतलब सोचो कि ब्लास्ट जहाँ पे हुआ है उसके 10 किलोमीटर तक लोगों के जो खिड़की शीशे हैं सब टूट गए, उनका ये हुआ था, इतना तेज धमाका हुआ था, है ना। तो ये या तो केमिकल या फिर जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं तब आपका जो अर्थक्वेक ट्रिमॉर्स उठते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। एंड लास्ट आपका रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, ये वहां पे होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक डैम है, कोयना डैम, है ना, तो वो जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसके पास हम बहुत बड़ा सा वो बनाते हैं रिजर्वॉयर, जैसे आपने टिहरी डैम देखा है, कभी देखा है, तो टिहरी के पास बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, इसमें पानी हम जो है स्टोर करते हैं, है ना, तो हर डैम के पास बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनाया जाता है, बहुत कितने 1000 एकर्स में, ताकि जो पानी है उसको प्रिजर्व, तभी तो आप भाई फ्लड आया तो आप पानी उसमें स्टॉक करके रखोगे, तो छोटा सा पॉन्ड बना, तालाब बना से थोड़ी होगा, है ना, तो बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनता है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब रिजर्वॉयर में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे जो उसके नीचे की रॉक्स होती हैं उनका बैलेंस, हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस बिगड़ जाता है, पानी की वजह से, पानी के जो वेट होता है, भाई आपने यहाँ पे इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन उसके नीचे भी तो है, रॉक्स है ना उसके नीचे, है ना, तो उससे क्या होगा कि आप, क्योंकि पूरा क्रस्ट थोड़ी आपने खोद दिया है, क्रस्ट तो बहुत गहरा है, तो आपने जो भी डिप्रेशन क्रिएट किया है उसके नीचे भी रॉक्स है, और मान लो वीक जोन हुआ तो पानी का वो बैलेंस जो है, उसको प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है, और उस एरिया में कभी कभी रिजर्वर टूट भी जाते हैं, और जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है आसपास के एरिया में, जैसे कोयना डैम, महाराष्ट्र का जो सितारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोयना डैम बनाया था, कोयना नदी के ऊपर, और वहां पे जो आपका डैम था उसका पानी, रिजर्वर का पानी इतना ज्यादा हो गया था, और शायद वहाँ का एरिया जो काफी वीक होगा लिथोलॉजी में, रॉक के उसमें, कि वो पूरा फट गया, और वहाँ पे जो है लाइट वाइब्रेशंस फील हुए थे, और उसको जो कहा जाता है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। तो ये हो गया आपका। देन अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, ऑन द ये स्केल, रिक्टर स्केल पर 0 to 10 के स्केल पर, ठीक है। Then the intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is from 1 to 12. Intensity scale भी होता है जिसको मर्केरी ने बनाया था, नेथानियल सिस्मोलॉजिस्ट, लेकिन जो रिक्टर स्केल होता है वो 0 to 10 के उस पे मेजर करता है, 0 to 10 के स्केल पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पे मेजर करता है। ना इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक बहुत आसान है, आज हम ये अर्थक्वेक वाला तो फिनिश कर ही लें। लाइक ग्राउंड शेकिंग होती है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, जमीन हिलने लग जाती है। किसी ने अर्थक्वेक फील किया कभी, कहाँ फील किया, ऋषिकेश में, तो अर्थक्वेक शेकिंग होती है। देन डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो जाता है, कि जब भी अर्थ हिलेगा,
हिलता तो है ही, वो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर मान लो हाई फ्रिक्वेंसी का आया तो बहुत बार ऐसा होता है कि जमीन का एक हिस्सा ऊपर और दूसरा हिस्सा नीचे, है ना। अब मान लो वाइब्रेशन हो रहा है, फोर्स इधर से आ रही है, तो क्या होता है, एक जो लैंड पार्ट होता है वो दूसरे लैंड के ऊपर चढ़ जाता है या धस जाता है, ऐसे करके मतलब पूरा जो लैंड है वो डिफॉर्मेशन हो सकता है। डिफॉर्मेशन से मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ओवरराइड हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो डिफॉर्मेशन हो सकता है। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड्स हो सकती हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो उस पर से जो भी पत्थर है, चट्टान है, वो सब भाई जब गिलेगा एरिया तो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, मतलब मिट्टी बहकर आ जाती है, मिट्टी बह जाती है। ग्राउंड लर्चिंग वो बता दिया। एवलांच, अगर ठंडे एरिया में आया है तो एवलांच जब वार्म एरिया में आता है तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं पहाड़ी एरिया में। और जब बर्फीला पहाड़ होता है जिसपे स्नो होता है और स्नो जब बहुत तेजी से नीचे आता है तो उसको हम एवलांच कहते हैं, ठीक है। देन ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, वही सेम चीज है। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर, भूकंप आया, अगर वहां कोई डैम है तो डैम क्या हो जाएगा, अगर हाई स्केल पर आ गया 9-10 पे, क्या होगा, तो डैम फट जाएगा, टूट जाएगा, जितना रिजर्व में पानी है वो निकल जाएगा और इनडायरेक्टली फ्लड आ जाएगा। तो अर्थक्वेक फ्लड तो रोकता ही है, लेकिन कभी कभी डैम्स फ्लड को रोकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर अर्थक्वेक आ गया तो डैम की वजह से फ्लड भी आ जाता है, क्योंकि जब रिजर्वॉयर टूट जाएगा तो पूरा का पूरा पानी बहकर चला जाएगा। आग लग सकती है, मान लो आप अपने घर में खाना पका रहे हो, आप कुछ और घरों में अपने कुछ या किसी फैक्ट्री में कुछ फायर से रिलेटेड काम कर रहे हो और बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ, सब ऊपर से नीचे गिर गया, आग भी लग सकती है। जैसे जापान में बहुत बार हुआ है, जो जापान में तो आता रहता है ना अर्थक्वेक, तो वो तो भाई बहुत वैसी कंट्री एडवांस जो मतलब उसमें सर्वाइव कर रही है। तो वहां पे तो कोबे कोबे एरिया है वहां का, जापान का, तो वहां पे जब आफ्टरनून के टाइम भूकंप आया था तो वहां पे सारी जो मैक्सिमम जो औरतें थी घर में खाना पका रही थी, है ना, तो उससे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर फट गया या कहीं कुछ आग लग गई, तो फायर भी बहुत जो है चांसेस होते हैं उसके। देन स्ट्रक्चरल कोलैप्स तो होता ही है, घर गिर जाते हैं, कुछ बिल्डिंग गिर गई, कुछ ना कुछ गिर गया अर्थक्वेक में। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सामान इधर से उधर गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड सुनामी, अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आया है, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो उससे क्या आता है, सुनामी। तो भूकंप ऊपर भी आते हैं, भूकंप पानी के अंदर भी आते हैं, क्योंकि लैंड ऊपर भी है, लैंड पानी के नीचे भी है। तो और उसको हम क्या कहते हैं, सबमरीन अर्थक्वेक। जब पानी के नीचे अर्थक्वेक आता है तो उसको हम कहते हैं सबमरीन अर्थक्वेक, तो उससे सुनामी आता है। तो ये सब हमारे जो भी है अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं। तो हमने अर्थक्वेक का क्या होता है पढ़ लिया। द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन ड्यू टू सिस्मिक वेव्स इज नोन एज अर्थक्वेक, है ना। जब अचानक से क्रस्ट हिलने लग जाता है, भूपरपटी, हिंदी में क्या कहते हैं, भूपरपटी, जब अचानक से भूपरपटी हिलने लग जाती है बिकॉज ऑफ द सिस्मिक वेव्स, इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। और टाइप्स मैंने आपको बता दिए, टेक्टोनिक, सेकंड कौन सा है, वोल्केनिक, देन कोलैप्स, एक्सप्लोजन एंड लास्ट रिजर्वॉयर इंड्यूस, जो कि डैम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स आपने पढ़ लिए एंड इफेक्ट्स पढ़ लिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अबाउट वॉल्केनोस। वैसे ज्यादा नहीं, आज ही मैं खत्म कर देती इसको, नहीं, एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, वो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड वॉल्केनोस। तो ये हम कल की क्लास में इसको फिनिश करेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। जो ऑनलाइन बच्चे, उनको आवाज आ रही थी? यस मैम। ओके, निकलती है वॉल्केनो का आता है, वो आता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से, है ना। जब क्या होता है कि मान लो आप पता है कि जो है प्लेट्स डिवाइड है, तो जब भी प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी या प्लेट्स